In the last module, we have discussed the acidic and basic properties of amino acid with reference to zwitterions, that is, that each amino acid can take a proton or accept a proton or donate a proton, so it can act as a base or as an acid. Each acid has a characteristic tendency to lose its proton in aqueous solution. That is the simple or plain definition of an acid, that it can donate a proton when it is dissolved in a aqueous solution. The stronger the acid, the greater is its tendency to lose the proton. It means कि जितना acid strong होगा उतना ही उसकी tendency होगी या उतनी जल्दी वो proton lose करेगा in an aqueous solution. The tendency of any acid that is denoted here as HA, अगर हम किसी acid को HA के तौर पर denote करते हैं, and it is the tendency of an acid to lose a proton and form its conjugate base, which is denoted as A prime or A negative, is defined by the equilibrium constant, which is K equivalent. For the reversible reaction, which is denoted here as HA, this is an acid and this is reversibly dissolved in an aqueous solution and converted into A minus and hydrogen ions. A minus is the conjugate base. तो जब भी कोई acid को से HA in this case is an acid, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन दे देता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स एसिडिक फॉर्म विच इज़ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, और ये एक रिएक्शन दोनों तरफ चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस के एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है जहाँ पे एसिड और बेस के का कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाती है विद द concentration of the HA which is a acid. इस पॉइंट को हम कहते हैं equilibrium and it is denoted as equilibrium constant. Equilibrium constant for ionization reactions are usually called ionization constant or acid dissociation constants, often designated as Ka. जिस वक्त भी हम इसको डिफाइन करते हैं तो इस एक कांस्टेंट लेवल पे, एक इक्विलिब्रियम लेवल पे जाके आधे जो है एसिड वो एसिडिक फॉर्म में है और आधा एसिड जो है वो एसिड और बेस फॉर्म में है, यानी आधा डिसोसिएटेड है और आधा नॉन डिसोसिएटेड है. तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Ka से और इट कैन बी रिटन एज Ka. एक पर्टिकुलर लेवल पे आके दिस Ka इज डिफाइंड numerically as hydrogen ion concentration and its conjugate ion concentration, which is the base, divided by its reactant, which is the acid in this case. Stronger the acid, larger is the dissociation constant. कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, हमने कहा उतनी जल्दी वो डिसोसिएट होगा, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. इसी तरह जितना वीकर द एसिड, द स्मॉलर इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. जितना वीक एसिड होगा उतना स्लोली वो देगा इलेक्ट्रॉन्स उसको, प्रोटॉन्स को, और उतना ही उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर होगा. दिस इज द Henderson-Hasselbalch equation. We will briefly define here or recall the Henderson-Hasselbalch equation, which denotes that pH is equal to pKa plus log of base over acid. यहाँ पे बेस क्या है? A हमने पीछे डिफाइन किया है, जो कन्वर्ट हो गया जिसने HA is the acid. इस एसिड ने प्रोटॉन लूज कर दिया और कंजुगेट इसकी बेस अलग हो गई. So this is the Henderson-Hasselbalch equation. And pKa को भी हम इसी से डिफाइन करेंगे. What is pKa? Ka हमने कहा है कि कांस्टेंट है जो इक्वल है by the reactants divided by the products divided by the reactants.
तो इस Ka को हम pKa में जब कन्वर्ट करेंगे तो pH को जिस तरह हम डिफाइन करते हैं, pH इज द माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह Ka जो है, दिस इज ऑल्सो द माइनस लॉग ऑफ Ka और log of 1 over Ka. So the stronger is the acid, the lower is the pKa. यहाँ रिलेशनशिप इनवर्स हो गया, रिलेशनशिप pK का और pKa का इनवर्स pK का और pKa का एसोसिएशन हम देख रहे हैं, इनवर्स हो गया। पीछे हमने कहा था कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही Ka हायर होगा, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना Ka लोअर होगा, क्योंकि उतना pKa लोअर होगा, क्योंकि pKa इज द log and the minus log, that is 1 over Ka. The stronger the tendency to dissociate a proton, the stronger is the acid and its lower is the pKa. क्योंकि pKa लोअर क्यों हो गया? जितना स्ट्रॉन्गर एसिड है Ka हायर है, pKa लोअर है, क्योंकि pKa इज द माइनस ऑफ log of Ka. The pKa expresses a logarithmic scale the relative strength of an weak acid or a base. The pKa can be determined experimentally. हम इसको pKa को experimentally भी determine कर सकते हैं. We will see in the next few slides. It is the pH at the midpoint of the titration curve for an acid or base. अगर हम किसी उसमें एसिड के अंदर बेस के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे तो एक मिड पॉइंट टाइट्रेशन कर्व आएगा जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे। एट द मिड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन डोनर एंड द प्रोटॉन एक्सेप्टर आर इक्वल एंड द pH इज न्यूमेरिकली इक्वल टू pKa। ये हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म की कि जब भी हम टाइट्रेट करते हैं एक एसिड को विद अ बेस, तो मिड पॉइंट वहां पे आता है जो इक्विलिब्रियम पे है, जहां पे आधे जो है ना, आधा एसिड इन द एसिड फॉर्म होगा और हाफ एसिड इज इन द डिसोसिएट फॉर्म, दैट इज इट्स कंजुगेट बेस एंड इज प्रोटॉन, एंड दिस pH इज न्यूमेरिकली इक्वल टू pKa। अब हम इसी अपनी स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये हैंडरसन एज़ेल्बैच इक्वेशन दोबारा आ गई, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस और बेस ओवर एसिड। एट मिड पॉइंट हमने कहा है कि HA जो है इसकी कंसंट्रेशन इक्वल है इट्स कंजुगेट बेस के, सो HA डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई HA इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल है। अगर इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, या इसकी आप कह लें 10 है और इसकी भी 10 है, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू 1। सो log 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर pH इज इक्वल टू pKa। सो द स्टेटमेंट इन द प्रीवियस स्लाइड इज हियर proved as a numerically or as a mathematically. This is a diagrammatic presentation of a weak acid which is acetic acid. यहाँ पे we can see that at pH 2 this acetic acid is whole in the form of acetic acid form. इसको हम एक strong base सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट इसको टाइट्रेट करेंगे एंड वी विल फॉर्म अ कर्व। जो कर्व बनेगा एट द हमने डिफाइन किया है pKa इज द एरिया और Ka इज द कांस्टेंट वेयर हाफ द एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ एसिड। ये pKa और Ka का एरिया है, जहां पे हाफ एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड फॉर्म में है और half is in the acetate ions. So pH is equal to pKa, that is for this particular acid is 4.76। तो ये डिफाइन हो गया यहाँ पे आके। जब हम इसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाते हैं तो अल्टीमेटली एसिटिक एसिड जो है
वो टोटली यहाँ आके एट अराउंड 8 pH ये सारे का सारा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू एसीटेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले जाएगा. सो एट दिस लेवल all the acid in the form of the acetate ions, यहाँ पे सारे का सारा in the form of acetic acid है, जबकि at pH 4.76 half is in the acetate ions and half is in the acidic form. तो हमने इसको डिफाइन कर दिया अपनी स्टेटमेंट को 3 डिफरेंट वेज से कि एक जो है फर्स्ट इज pH इज इक्वल टू pKa एंड एट द मिड पॉइंट. फर्स्ट ये हमने स्टेटमेंट दी, इसको हमने न्यूमेरिकली भी प्रूव किया और ग्राफिकली भी प्रूव किया इन दिस पर्टिकुलर ग्राफिक प्रेजेंटेशन.